Hello students, welcome to the next lecture on the CSR Net Mathematics. Today I will explain you the complete solution of the differential equations in my own wording in a 15-second time period. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. If you are interested to join with me, you can scan and join my 6th फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाओ। If you want to find more details about the ordinary differential equation, you can find this single playlist. इस सिंगल प्लेलिस्ट में आपको मोर देन इनफ सीएसआर नेट के लिए थ्योरी लेक्चर्स एंड द पीवाई क्वेश्चन लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन जस्ट द 15 सेकेंड टाइम पीरियड। फाइन, इफ यू रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, आपका टारगेट क्या है क्वेश्चंस में? देखिए आपको क्या बोला गया है, टी अप्रोचेस इंफिनिटी। तो क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको? व्हेनेवर इन द ऑप्शन टी अप्रोचेस इंफिनिटी गिवन, वी कैन ऑलवेज अप्लाई द steady state concept. Fine. So what will happen when t tends to infinity? That means dx over dt will goes to the zero. तो ये आपका सिस्टम क्या बन गया? ax is equal to 0. Fine. So can you find the eigenvalue of the matrix A? What are the eigenvalue of the matrix A? So clearly say it's a lambda square minus 7 lambda, 10 minus 4 is a 6. So the eigenvalues are my 1 and 6. तो आपका solution क्या बन गया? X will be C1 e raised to power 1 into t, C2 e raised to power 6t, where C1 and C2 are my arbitrary constants. Is it okay? Now look at the first option. X is a bounded function. So clearly say the first option is cancelled. Why? Because e raised to power t, e raised to power 6 of t will goes to the infinity as t tends to infinity. Look at the second option. Whenever t tends e की power minus of 6, तो ये कितना हो जाएगा? c1 e raised to power minus 5t plus c2, it tends to 0. It is not always true. As the t tends to infinity, the first quantity will goes to the 0. But since C2 is my arbitrary constant, so C2 it may be 1, it may be 7, or it may be 0, but it is not always true. That's why the second option is also cancel out. Look at the third option, e की power minus of t. So once you can multiply with e की power minus of t, that becomes C1. Clearly say which is not always goes to the infinity. Why? What will happen if C2 is my 0? Because C1 and C2 are my arbitrary constants and C1 I can take as a 7, then it is not goes to the infinity. Because आपको C1 C2 निकाल नहीं ना सकते, x not given नहीं है आपके पास. And the last case is e की power minus of 10t. So that will be C1 e raised to power minus of 9 plus C2 e raised to power minus of 4t. As t tends to infinity, this will goes to a 0 always, whatsoever the value of the C1 and C2. Yes, D is my right answer of the problem. देखिए कितना आसान था. स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाओ एंड गेट द आंसर इन अ वेरी सिंपल मैनर. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. देखिए प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का था एंड शॉर्टकट ट्रिक्स में ऑलरेडी आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की मैं इस लेक्चर में दे चुका हूं आपको. फाइन, यू कैन वॉच अबाउट माय इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेक्चर्स. यू कैन वॉच माय यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस लेक्चर एज वेल. फाइन, चलिए consider the initial value problem. Which of the following statements are correct? That's the part C. Fine. The function g does not satisfies the Lipschitz condition. आपका टारगेट क्या है? आपको ये प्रूफ करना that must be unbounded. Fine. तो करो डेरिवेटिव. g का डेरिवेटिव करो with respect to u. So that will be 1 over 5 t square u raised to power minus 4 over 5. Clearly say that will goes to the 0 as u approaches 0. और वो यही कह रहा है ना आपको.
इसका मतलब दैट मीन्स जी डज नॉट सेटिस्फाइड माई लिपस्टिस कंडीशन, और वो वही तो कह रहा है, डज नॉट सेटिस्फाइड. द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. Similarly, you can see t square u की power 1 by 5 satisfies the Lipschitz condition. That option is cancel out. Fine. ये तो बात होगी g पे. Now the given solution, given initial value problem has a solution. क्या मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दिया था इस लेक्चर में भी, यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस में? Whenever you have dy over dt is a y raised to power alpha, provided y of beta is my 0. Fine. Such that alpha is any number lies between 0 and 1, beta is the any real number. Then the given initial value problem has a unique solution, or it has infinitely many solution. Unique solution तब बनेगा whenever a coefficient of the y की power alpha must be less than 0. Infinite solution तब बनेगा whenever it is my greater than 0. Now you can see alpha is my 1 over 5, which is lies between 0 and 1. Beta is my 0, which is again lies in the R. What is my a? A is my t square, which is always greater than 0. So once greater than 0, there is no solution cancel. There exists more than one solution is the right answer. 1 and 3 is the correct answer of the problem. और ये इस शॉर्टकट ट्रिक के साथ आप ये वाला लेक्चर सुनिए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. फाइन. इसके अंदर सारे क्वेश्चन इसी सिंपल एक लाइन से ही सॉल्व करे हुए हैं. Look at the next one. Consider again the initial value problem है, unique, infinite and so on. तो ये वाला कंसेप्ट लगा दो फिर से. फाइन. बस मेक श्योर इतना रखना कि इस अल्फा की वैल्यू आपकी 0-1 के बीच में होनी चाहिए. तो लुक एट फॉर द p को क्या लिख सकता हूं मैं? x प्राइम इज x की पावर हाफ, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 1. क्लियरली से a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0. तो जैसे ग्रेटर देन 0 है, you will get infinitely many solutions. So P will get the infinitely many solution. While Q के लिए क्या है आपका? A -1. So whenever A is my -1, it is less than 0, you will get the unique solution because power आपकी अल्फा जो है वो 0-1 के बीच में ही है, और that is also the real part. राइट हैंड साइड आपका 0 ही दिया हुआ है. कंडीशन इसके साथ मैच होनी चाहिए आपकी प्रॉपर. तो इसका मतलब P is my infinite, Q is my unique, P is my infinite, Q is my unique. So 2 and 3 are the right answers. एक चीज बताइए बच्चों पहले, कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक कर रहे हो, जितने आगे और करवा रहा हूं अभी, इन सबके कौन सी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मैंने आपको एग्जाम से पहले नहीं बताई हो? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कि आपको अप्लाई करनी है. वो तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप इस तरह के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आप प्रैक्टिस भी इसी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ करिए. आप जनरली क्या करते हो? इसको सेपरेट द वेरिएबल कर लेते हो. फाइन. एंड देन उसको इंटीग्रेट करते हो, देन सॉल्व करते हो. फिर आप एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करोगे? जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी शॉर्टकट ट्रिक्स की, तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में. So that's why I'm asking you, always follow my videos to do the calculation in just a 15-second time period. Chaliye, look at the next one. F is a bounded function, and what is the meaning of the C1? C1 means continuously differentiable function. तो आपको एक ऐसा फंक्शन लेना है जो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है और बाउंडेड भी है. फाइन. क्या कोई फंक्शन आपके दिमाग में आता है? कांस्टेंट फंक्शन. इससे आसान तो कुछ नहीं होगा ना. तो आपका क्या बन गया? ये x प्राइम इज माई 1. इफ यू इंटीग्रेट देम, x इज इक्वल टू t प्लस c. क्लियरली से x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू t. तो क्या बन गया ये आपके पास? एज ए सोल्यूशन यूनिक. क्लियरली से देयर इज नो आर्बिट्री कांस्टेंट that will give the unique solution. Infinitely many solution will be cancelled. Fine. आप कोई और भी ले सकते हो. You may choose as a sine of t is a continuous. Fine. Differentiable and bounded. So that implies x prime is my sine of t. Fine. If you integrate them, you will get x is equal to minus cos of t plus constant. X of 0 is equal to 0.
you will get c is equal to 1 because cos of 0 is 1, so that will give you 1 minus, again you can see you will get a unique solution. Fine, so it's always give you the unique solution. And whether it has a solution, yes it has a solution which comes to be this number. Clear? और आप the solution satisfies a ellipse. What is the solution is x. तो कोई भी केस ellipsis condition कब satisfied करता है? When you find the derivative with respect to t. If it is bounded, fine. If you prove that it is a bounded, then it satisfies the ellipsis condition. What is that del x by del t? Is a f, and f is my bounded, so that implies is a less than of the m. Hence, the solution x will satisfy my ellipsis condition. So the right answers are 1, 2, and 4 are my correct answers. Fine. तो देखिए कितना आसान आपके पास सिंगल लाइन के अंदर आपके पास आंसर मिल गया आपको. चलिए look at the next one. F is satisfied by local ellipsis functions. So you can watch about my previous lectures related to the ellipsis conditions, examples of the ellipsis condition and many more. तो local ellipsis condition का क्या मतलब होता है? पहले तो ये बताइए आप. That implies local unique solution existence. Local unique solution existence. Fine. क्योंकि आपकी ellipsis condition ग्लोबली नहीं है, लोकल एग्जिस्टेंस बनेगा. J represents my maximal interval of existence. तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं, मैं टिप्स दे रहा हूं ये भी आपको. 15 सेकंड में मैं बाद में सॉल्व करूंगा. फाइन फाइन, ये टिप्स तो आई कैन अज्यूम दैट एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर. फाइन, तो ये आपको पता होंगे ना. तो मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज क्या होता है? वो ऑलवेज इंटरवल होता है. फाइन, और वो इंटरवल दो फॉर्म का हो सकता है, चाहे तो आर की फॉर्म का होगा, चाहे तो अल्फा कॉमा बीटा फॉर्म का होगा. यही तो होगा ना. आर इज एन ऑल्सो एन इंटरवल. फाइन, बट एक बात याद रखो, अगर आपका मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, सॉरी एम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, आर लिखिए, आर की जगह पे ई लिखिए ना, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस आर नहीं है, देन इट इज ऑलवेज ओपन सेट. The maximum interval of existence is always open set. अगर वो R नहीं है तो. अगर R है, फाइन, तब तो ओपन एंड क्लोज दोनों हो जाएंगे. क्लियर? तो जैसे आप देखो, इसमें से एक ऑप्शन ट्रू है. फाइन, तो आप देखो अगर तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, R इज ऑल्सो एन ओपन, तो सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा. अगर R है तो क्लोज ये भी हो जाएगा. लेकिन तीन ऑप्शन तो इसके है नहीं. इसका मतलब डेफिनेटली पहला ऑप्शन तो आपका क्रॉस होना ही होगा अगर ये पार्ट बी का क्वेश्चन है. फाइन, अगर आपका आर नहीं है तो ये हमेशा ओपन होगा, तो ये क्लोज भी कैंसिल हो गया. क्लियर? बट दिस इज नॉट द राइट वे. ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास पार्ट बी का क्वेश्चन हो. लेकिन अगर तो ये पार्ट सी का है, देन तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. अब मैं आपको इसका जनरल प्रोसीजर बताता हूं. देखिए ये वाले टिप्स तो आपको पता होने चाहिए ना. मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज इंटरवल इधर एज ए आर और एज द ओपन इंटरवल ए अल्फा कॉमा बीटा. चलिए अब क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा आसान बना लेते हैं. सो dx ओवर dt विच इज इक्वल टू f. f क्या कह रहा है? लोकल ellipsis फंक्शन. कोई भी ले लो, पॉलिनोमियल ले लेते हैं. फाइन, और इनिशियल कंडीशन हम ले लेते हैं x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. तो आप इसका सॉल्व करो, कितना हो गया ये -1 ओवर x विच इज इक्वल टू t प्लस कॉन्स्टेंट. फाइन, अब आप x की वैल्यू 0 लेके तो नहीं बनेगा, इसको 1,0 ले लेते हैं. फाइन, तो आपका क्या होगा? t विल बी 0, नहीं, यस, t 0 लिया था ना मैंने. फाइन, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू 0 है, तो c विल बी माई -1. फाइन, यहां से c आपका कितना हो गया? -1. सो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओवर 1 माइनस टी. फाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कितना आएगा? -∞ से 1 आएगा ना आपका, बिकॉज 1 के बाद क्या हो रहा है? ये इसे ब्लो अप एट t इज इक्वल टू 1. तो इसका क्या मतलब हो गया? विच इज नॉट इक्वल टू r. तो इसका तो पहला ऑप्शन आपका
काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड हो गया। अब जैसे ही आर कैंसिल हुआ, इट कैन नेवर बी क्लोज्ड। क्लोज तभी बनेगा जब वो आर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फाइन। और कुडंट बी एन एम्प्टी, कुड बी एन एम्प्टी, सॉरी, कुड बी एन एम्प्टी। तो लेकिन आपके पास क्या है, लोकल लिप्सिस फंक्शन है, तो लोकल यूनिक सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ही आपको सोल्यूशन मिला, इवन एज ए लोकल भी हो क्यों ना हो, तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है वो कभी भी आपका 5 नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई तो सोल्यूशन मिला ना, तो दैट कैन नेवर बी एम्प्टी। तो इसका मतलब ये आपके पास सेट क्या बना है, माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 इज एन ओपन सेट। तो देखिए कितने सिंगल वर्ड में आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कर्नल, दैट्स द पार्ट बी। सबसे पहले आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखकर अगर आपको बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, फाइन, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जब भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का हो और कर्नल का हो, यू मस्ट अप्लाई द ग्रीन फंक्शन। फाइन। जब भी आपको अप्लाई करना हो, ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में अप्लाई करो। तो कर्नल को हम ग्रीन फंक्शन भी कह देते हैं। फाइन। कर्नल इज माई ग्रीन फंक्शन। तो शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। से a y डबल प्राइम प्लस b y प्राइम प्लस c ऑफ y इज इक्वल टू 0। इसकी कोई एक इनिशियल कंडीशन आपके पास है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू समथिंग, y ऑफ 1 इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी इनिशियल कंडीशन दे रखी हो, बाउंड्री कंडीशन। फाइन। इसका सबसे पहले ग्रीन फंक्शन आपको लिखना है g, which are divided into the two category f1 and f2 from 0 to t and t to l। l क्या है, इसकी डोमेन क्या है आपकी 0 to 1, तो इसका मतलब इस केस में l आपका 1 हो गया। फाइन। बट एक चीज याद रखनी है, जब भी ग्रीन फंक्शन लगाना हो, सेंटर में आपका x होना चाहिए। फाइन। अगर आपकी डोमेन कुछ ऐसे है, फाइन, और x t to l, तो सबसे पहले आपको इसको रिप्लेस कर दो और यू कैन से इंटरचेंज x टू बी द t। इज इट ओके? चलिए, जो भी आपके पास कंडीशन है आपके पास, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रीन फंक्शन। हमेशा यही प्रॉपर्टी से आपको चेक करना है क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। और सबसे पहले आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, दैट मीन्स फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द g विद रिस्पेक्ट टू x whenever t approaches positive, that means f2 minus partial derivative of the f1 with respect to x, it must be equal to minus 1 over coefficient of the highest term. Coefficient of the highest term is a, so that will be minus 1 over a। समझ गए? अब यही चीज मैं यहां पे लगाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। ऑप्शन वाइज ऑप्शन चलते हैं। ग्रीन फंक्शन लगा रहे हैं, पहले इस वाले का क्या मतलब है, t इज लेस देन x लेस देन 1 हो गया, और दूसरा आपके पास क्या है, x इज ग्रेटर देन t, x इज ग्रेटर देन t, तो लोएस्ट नंबर आपका 0 हो गया। तो ये नीचे वाला नंबर आपका f1 है, ऊपर वाला f2 है आपका। फाइन। तो क्या आपके पास है, अगर मैं इसको k लिख रहा हूं, मैं पहली बार एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपको, whenever t पॉजिटिव माइनस it will be t negative, that must be equal to minus 1 over coefficient of the y double prime। फाइन। अब ये प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से सेटिस्फाइड हो रही है। तो t पॉजिटिव, ये पहले वाला पार्ट आएगा ना, x के साथ डेरिवेटिव करो, माइनस ऑफ t, t नेगेटिव के साथ सेकंड वाले में x के साथ डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस t, विल इट बी इक्वल टू माइनस 1? You can solve that if you open the bracket, minus 1 is equal to minus 1, the first option is the correct one। क्योंकि पार्ट बी का ही है तो पहले ऑप्शन ही आपको मिल गया। एनी हाउ, सेकेंड ऑप्शन, x अप्रोचेस t पॉजिटिव, x के साथ डेरिवेटिव करेंगे, दैट विल बी रूट ऑफ t, माइनस इसको x के साथ डेरिवेटिव करेंगे, दैट विल बी 1 बाय रूट 2x इंटू 1 माइनस t, विच इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। सो ये थर्ड ऑप्शन आपका कैंसिल होगा। Similarly, look at the second option, ये थर्ड ऑप्शन था। Look at the second option, derivative with respect to x is a minus of t, इसके सॉरी यहाँ माइनस आएगा, फाइन, into derivative with respect to x is a 2x 1 minus t, clearly say they are not equal to minus 1। Similarly, you can discard the fourth option because the power is 3 by 2। So the right answer is 1 is my correct answer of the problem। This is a simple green function concept, और मैं हर बार कर्नल के फंक्शन को फॉर मोर डिटेल्स आप
इंट्वेगल इक्वेशन, इस क्वेश्चन को आप इंट्वेगल इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो। फाइन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की तरह तो नहीं कर सकते, बट इंट्वेगल इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो। फाइन, देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट के एंड चेक फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका हर बार कर्नल फॉर्म की निकालो चाहे ग्रीन फॉर्म में निकालो। इज इट ओके एवरीवन? फाइन, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं आप एक बार, क्या इन वीडियोस में आपको एग्जामिनेशन से पहले कोई ऐसी वीडियो जो आपको लगती हो जिसमें ये सारे जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आज की वीडियो में बताए हैं कोई पहले से ना बता रखा हो? अगर आपका आंसर यस है, फाइन, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करें शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, जिसकी वजह से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो। फाइन, तो आई एडवाइस यू फॉलो माय वीडियोस and crack the examination in a very simple manner. Again, if you are interested to scan and join my WhatsApp group free of cost, you must like this video and subscribe. Only then you are allowed to enter in my free WhatsApp group. We will see the next lecture very soon. Till then, you can share this video with your friends. Happy learning, students. Thanks for the watching. Thanks for your support.